Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Samriddhi and I am an English teacher. So I hope you guys are enjoying your journey of learning English, whether it be grammar, spoken or working on your memory and writing skills. The ones are coming to my video for the first time, special welcome. My name is Samriddhi and I am a practicing advocate in Delhi High Court and District Court. So today we have a very interesting topic. I'll try to keep this video short. पिछले कुछ videos बहुत लंबी हो गई है. So we are talking about determiners. Okay, determiners help us to identify or point out things. ठीक है जी? In this there is a category called quantifier. Determiners के ऊपर specially video नहीं है. I am talking about uh, four very useful determiners, but they're often confused. Okay, so we are talking about determiners, and in determiners we are talking about quantifiers, जो बताते हैं कितना है, कितना, how much, not how many but कितना. ठीक है? So there are two categories, few, little, a few and a little. ठीक है? So few and a few are used for countable. काउंटेबल नाउन, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं. ठीक है? लिटिल एंड अ लिटिल आर यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल. ठीक है? जिनको हम गिन नहीं सकते. फॉर द वंस वी कैन काउंट, वी यूज फ्यू और अ फ्यू, एंड द वंस वे वी कैन नॉट काउंट, दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स लाइक वाटर, sugar, happiness, kindness. जरूरी नहीं है कि आपके जो अनकाउंटेबल नाउन्स हो वो सिर्फ मटीरियल नाउन्स हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी हो सकते हैं. ठीक है? मटीरियल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल स्किन, हेयर, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मटीरियल नाउन्स. बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नाउन्स व्हिच वी कैन नॉट टच, जैसे हैप्पीनेस और काइंडनेस, उनको हम महसूस कर सकते हैं. नॉइस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल. काउंटेबल के एग्जाम्पल्स हैं पेन, चॉक, और क्योंकि अभी मेरा न्यू चैनल है तो व्यूअर्स, आई स्टिल हैव टू काउंट व्यूअर्स. अच्छा, मेरी ये वीडियो कितने लोगों ने देखी, ये वीडियो कितने लोगों ने देखी. आई थिंक द मोस्ट लाइक्ड one is present perfect, and I think the most viewed and liked is champion tenses in 30 minutes. So it's actually a good video, 30 minutes वाला. वो मैंने खुद देखा था. I was really proud of myself कि मैंने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया है. It's a good video that will give you an overview, especially if you're going for your exams. As I'm uploading my videos, students of 9th and 10th standard, even 8th standard, they're having their midterm exams. So these videos will really help you out. ठीक है? अच्छी videos है वो. I'm not just marketing myself, but I've actually seen those videos, and my students also who come to me for offline classes, उन्होंने भी ये देखी है. ठीक है? Keep dropping your feedback in the comment box, क्योंकि अभी तो initial stage है, हम और improvise कर सकते हैं. So maybe I can count my videos also, यार. If I can count my videos, I can count my viewers also. I can count likes also. ठीक है जी? So few and a few are used for countable nouns like pen, chalk, viewers, videos. Uncountable nouns are the nouns you cannot count. ठीक है? अब पानी आप गिनने तो नहीं बैठोगे. शुगर, चीनी का एक एक दाना तो गिनने आप नहीं बैठोगे. शुगर क्रिस्टल्स, हैप्पीनेस, काइंडनेस, नॉइज, इनके लिए हम क्या यूज करते हैं? लिटिल एंड अ लिटिल. ठीक है? I'm talking about them as determiners, especially in the quantifiers category. So I'll be dealing with few and few in this video because I have to keep it short. ठीक है जी? And you can see the part 2 in the next video. So this is part 1, and then you can watch part 2. ठीक है जी? Intro I'll not give in that video. I'll not waste time. आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इंग्लिश बोलने की? पहले मुझे ये बताइए. अब आप लोगों की मम्मियों के टच में तो मैं हूं नहीं कि फोन करके पूछ लूं कि मैम आपका बेटा या बेटी प्रैक्टिस कर रहा है क्या. छोटे बच्चों के साथ बेस्ट पार्ट ये होता है कि उनको अपने पेरेंट्स का डर होता है. वो अपने पेरेंट्स के डर से रिविजन करने बैठ जाते हैं. अगर वो होमवर्क नहीं करते तो मैं उनको बोल सकती हूँ कि यार आई टीच योर मदर इफ यू डोंट डू योर वर्क. बट व्हाट डू आई डू अबाउट यू गाइस? मुझे पता भी नहीं मेरी ये वीडियो कौन देख रहा है. सो यू विल हैव टू टेल मी दैट इफ यू आर प्रैक्टिसिंग रेगुलरली, यस और नो.
in a videos, I think in a video, 3-4 videos before that, or in a recent video, I don't know, I wrote this quotation: Rome was not built in a day. इसका मतलब क्या है? Rome was not built in a day. Nobody has told me in the comment box yet. But this really goes in the long run. ये आपको समझना बहुत जरूरी है. There are few children who get this, and there are a few students who actually imbibe these. अब few और a few में क्या फर्क होता है? Few का मतलब होता है बहुत कम. अब few का मतलब कम है पर काफी है. काफी मैं नुक्ता लगा रही हूँ ताकि उर्दू वाले ना आ जाएं. मेरी उर्दू बहुत ही खराब है, उतनी ही आती जितनी हिंदी क्लास में सिखाई थी. सो फ्यू का मतलब बहुत कम. आप उन चीजों को काउंट कर सकते हो. ओनली फ्यू हैंड्स वर रेज्ड एट द टाइम ऑफ वोटिंग. थोड़ा लेम सा एग्जाम्पल है पर हाँ ठीक है. इसका मतलब है कि वोटिंग के टाइम पे बहुत कम लोगों ने हाथ खड़े करे. ओनली फ्यू पीपल आर लाइकिंग माई वीडियोज. बहुत कम लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं. ओनली फ्यू पीपल आर लाइकिंग माई वीडियोज. बहुत कम लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं. ओनली फ्यू हैंड्स वर रेज्ड एट द टाइम ऑफ वोटिंग. वोटिंग के वक्त बहुत कम लोगों ने अपने हाथ उठाए थे. बहुत कम कि वो इनसफिशियंट है. ठीक है जी, ये आपको समझना पड़ेगा. ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है. अब मैं ऐसे भी कह सकती हूँ अगर मुझे पॉजिटिवली यूज करना. आई हैव फ्यू डाउट्स इफ यू कुड टेक. आई हैव फ्यू डाउट्स इन दिस टॉपिक, कुड यू प्लीज टेक. बहुत कम में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. ठीक है, ये चीज को इंडिकेट करता है. नाउ कमिंग टू अ फ्यू. अ फ्यू इज यूज टू इंडिकेट कम है पर काफी है. आई थिंक आई हैव अ फ्यू subscribers. I think I have a few subscribers to begin with. शुरू करने के लिए मेरे पास कुछ सब्सक्राइबर्स हैं. कम है पर ठीक है. आप एक सब्सक्राइबर के लिए मैं क्यों न्यू वीडियो बनाऊंगी? बना भी सकते हैं. इफ आई से आई हैव फ्यू सब्सक्राइबर्स, मतलब एक या दो सब्सक्राइबर ही हैं. ठीक है, क्विकली राइट डाउन. क्विकली. The ones who have watched my bottleneck video would have surely started writing whatever they are studying. Please write. ये भी लिखना बहुत जरूरी है. I hope you guys are maintaining a good notebook. एक अच्छी प्यारी सी नोटबुक बनाइए ताकि आपको उसको खोलने का मन करे. But only few people pay heed to whatever I say. Only few people pay heed to whatever I say. बहुत कम लोग हैं जो मेरी बात को सुनते हैं, उसके पीछे दिमाग लगाते हैं. Only few people pay heed to whatever I say. ठीक है जी. A few. A few का मतलब क्या होता है? कम है पर काफी है. I think I have a few good ideas. कम है पर अच्छे हो सकते हैं. काफी है. I think I have a few good ideas. I have few friends. मेरे ना के बराबर दोस्त है. ठीक है. I have a few friends and we are happy. I have a few friends and I am happy. Few का मतलब होता है बिल्कुल कम, और a few का मतलब होता है कम है पर काफी है. ठीक है, चलिए कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं. I hope you guys have finished writing. Yes, please. And in case you could not and I read the board in a rush, then please pause it, go 10 seconds back, reverse and watch. Please. Writing is very important. When we are meeting and greeting each other after 5 months, एक महीना तो हो गया चैनल को, I guess. I have uploaded 15 videos, more than 15 videos. So I think yes, a month. Okay, so we have 5 months to go and I really hope that in 5 months we are able to do good. आप प्रैक्टिस करें. रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे दोबारा लिखें. इसका मतलब यही है कि एक दिन में कोई बड़ा काम नहीं हो सकता या बहुत अच्छा काम एक दिन में नहीं होता. This is used to indicate that you need patience, you need persistence, you need consistency in building something. Similarly, as a tutor, as a teacher on YouTube, maybe as a YouTuber,
If I have to build a big community of English learners, then this goes for me also. Rome was not built in a day. I am on a mission to build something good. I am on a mission to impact people. Okay, I really want to cast an impact on people ताकि मेरे पढ़ाए हुए लोग इंग्लिश बोले. It's a big goal. ठीक है जी. बहुत सारे लोग होंगे जो skip कर रहे होंगे इस पार्ट को जो मैं बोल रही हूँ. But we are on a mission to learn English. I am on a mission to teach and become a good YouTuber. You are on a mission to learn English. तो consistency, persistence, patience जितनी मेरे लिए जरूरी है उतनी आप लोगों के लिए भी जरूरी है. So this goes for both of us, both the parties. Yes, all right. So now कुछ sentences मैं बनाती हूँ. I have few doubts in this topic. मेरे इस विषय में ना के बराबर डाउट को क्या बोलेंगे? संशय. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स हिंदी ट्रांसलेशन. संशय है. मुझे इस विषय में ना के बराबर संशय है. तो मेरी की जगह मुझे होना चाहिए. What could be a better translation? Please आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा. Second, I have few friends. So, what is the point? So, what is the point of this party? मेरे बहुत कम दोस्त हैं तो इस पार्टी का क्या मतलब है? मेरे बहुत कम दोस्त हैं. मेरे बहुत कम दोस्त हैं तो इस जलसे का क्या मतलब? ठीक है. Only few members have consented. Only few members have consented for this amendment. जिनको समझना था वो समझ गए. समझदार को इशारा काफी है. What is amendment? This याद है? That those have you watched that video? In case you have not, it's a good video. It's a detailed video. I have given practice questions also. ये लिख लीजिए please. Please लिख लीजिए please. ठीक है जी. I hope I am not speaking too fast for you and I am not going too fast for you. I don't know. The students who come here to study from me at my place, they are able to cope up. They get my same speed because maybe सामने हो तो फर्क पड़ता है. My presence is more impactful as compared to online classes. I have no idea. This is the first time, first venture. So you'll all have to help me. ऑनलाइन क्लास में जब भी हम पढ़ते हैं गूगल मीट पे, so it works. ठीक है. But I don't know in terms of YouTube what is the speed, who is watching. I have no idea. अभी टाइम लगेगा. I have got a few ideas. We can start with them. ये मेरे एक स्टूडेंट का ही आइडिया था. आई सिंसियरली गिव क्रेडिट टू अर्नव. उसी का आइडिया था कि मैम आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो. उसने अभी एक स्पेशल वीडियो रिक्वेस्ट किया है नोटिस का. सामने आके पढ़ सकता है पर नहीं, नोटिस का मैम एक वीडियो फटाफट अपलोड कर दो. सो दीज किड्स ओनली मोटिवेटेड मी कि मैम आप अच्छा पढ़ाते, एक बार ट्राई कर लो. आई रिमेंबर सम ऑफ माई फ्रेंड्स बैक देन इन फैकल्टी ऑफ लॉ. मैंने ये स्टोरी पहले भी शेयर करी है. दे एनकरेज मी टू स्पीक अप. दे लाइक माई इंग्लिश. दे मेड मी रियलाइज दैट something I have something which is an asset.
जब तक आप लोगों से नहीं मिलते, अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते, तब तक आपको नहीं पता चलता आपका एसेट क्या है. सो माय फ्रेंड्स रियली हेल्प मी. थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स लॉ फैकल्टी. बहुत याद आती है मुझे उन दिनों की. बहुत मजेदार दिन थे वो. I had a few friends back then and it was great fun. हम ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे जो हमें याद रहेंगे, रिलेटेबल होगा. ठीक है, ताकि हमको कॉन्सेप्ट समझना है, चाहे आप 10 साल के हो चाहे 50 साल के हो. द आइडिया इज सेम, कॉन्सेप्ट दिमाग में जाना चाहिए. वॉच दैट वीडियो ऑफ माइन ऑन बॉटलनेक थ्योरी. यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स. तो रिलेटेबल एग्जांपल्स बनाते हैं. I have a few doubts in this topic. I request you to take an extra class. मेरे इस विषय में कुछ डाउट्स हैं, तो आप प्लीज एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए. मतलब डाउट्स उतने सफिशिएंट हैं कि मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े. बट इफ आई हैव फ्यू डाउट्स तो चलता है. ठीक है, अंडरस्टूड. Three examples from both the sides are enough, I believe. So that is it for today. Please write and please underline. डिफरेंस एक बार दोबारा फटाफट बता देती हूँ. फ्यू और अ फ्यू यूज करते हैं काउंटेबल नाउन्स के लिए, जिनको आप गिन सकते हैं 1 2 3 4. फॉर एग्जाम्पल फिंगर्स, हैंड्स, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, यूट्यूब वीडियोस, लाइक, सब्सक्राइबर्स. ठीक है. एंड फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, ना के बराबर. इट इज सर्टेनली यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस समटाइम्स. अ फ्यू का मतलब होता है कम है पर काफी है. देयर आर अ फ्यू pens in my box. I can lend you one. You can add surely also. I can surely lend you one. I can surely आप ऐड कर सकते हैं. There are a few pens in my box. I can lend you one. मतलब मेरे पास कुछ है, तुम ले लो. I can give. I am in that capacity. कम है पर काफी है. ठीक है जी. So thank you so much for watching this video. Please let me know how did you find this in the comment box below. And I'm really appreciative of people who give me feedback. बहुत अच्छे अच्छे feedback मिल रहे हैं. Please like, share and subscribe. You can anytime get in touch with me for your English classes, regular English classes, and I would really help you to teach you. Thank you so much. Bye bye.